Okay. Good afternoon, all. Am I audible? My sound is clear. If my sound is clear, we are going to discuss today the questions on the lesson number first and lesson number second. As we have discussed in the earlier lecture, that we have discussed some questions which are related to the statements and some questions which are related to the general topic, right? So let us study about the first question. So my first question is my first question is the genera plantarum. Now today we are going to discuss about questions in which are given in this book of the MTG, right? So genera plantarum was written by. My first question is I will ask you a question, then I will read all the options given. You have to choose the correct option, and in the chart box you have to select that option and you have to write that option, right? So genera plantarum was written by, the first option is Hutchinson, second option is Besse, third option is Bentham and Hooker, and third option is fourth option is the Linus. There might be some network issue today, right? So what is the genera plantarum is written by? What is your answer? Dia has given answer. So option A, D is D, right? So D, genera plantarum was written by the Linus. Don't forget this. It was written by the Linus, right? Next. Next is binomial nomenclature was given by. Option A is D. Cantor. Option B is Theophrastus. Option C is Linus. And last is Aristotle. Binomial nomenclature is given by option C. Yes, Linus. Linus gave the binomial nomenclature system, right? Next. Next question is the largest herbarium of the world is located at. The largest herbarium in the world is located at. Options given are okay. So next question is
The largest herbarium of the world is located at? Option A is New York, option B Geneva, option C Berlin, option D Kiev. So option answer is Kiev. Yes, KW. That is situated at the UK. That is United Kingdom. That is London. Okay. Next question. Next question is National Botanical Research Institute is situated at? National Botanical Research Institute is situated at? Option given is Delhi, Kolkata, Lucknow, and Dehradun. So all of you have given the right answer. The Lucknow is the right answer, right? Next question is related to the assertion and the statement, right? So many of you have asked me that, sir, please give the questions related to the assertions and reasons. We are going to discuss some questions which are related to the assertions and reasons. Pratham, I'm not discussing the test. We are discussing the questions. We have already discussed the test. I'm not discussing the test. I'm discussing the extra questions that are related to this test, right? So, study of internal. देखो assertion और reason वाले question अभी हम discuss करने वाले हैं. मुझे मैं आपको yes okay assertion और reason वाले questions में अभी हम discuss करने वाले हैं. एक question पहला नंबर देखो. पहला है assertion. पहले मैं assertion पढ़ता हूँ. Assertion सुन लो. वो सही है या गलत है ये मुझे बताओ सबसे पहले. Study of internal structure is called anatomy. This is the assertion. Assertion दिया है study of internal structure is called anatomy. Is it true? Yes, it is correct. Yes, Shavi. Yes. Next, reason दिया है it is used for the phylogenetic study. It is used for the phylogenetic study. Reason दिया है it is used for the phylogenetic study. मुझे ये बताओ अभी देखो assertion क्या दिया है पहले सुन लो मेरी बात. Assertion क्या दिया है study of internal structure is called anatomy and यहाँ पर रीजन दिया है एनाटॉमी इज यूजफुल फॉर द फाइलोजेनेटिक स्टडी. एनाटॉमी को हम यूज करते हैं फाइलोजेनेटिक स्टडी. जस्ट टेल मी whether the anatomy is useful for the phylogenetic study or not. नहीं करते ना. So we do not use anatomy for the phylogenetic study, है ना. phylogenetic study के लिए हम fossils का यूज करते हैं या फिर we use RNA, right? So here the statement first is correct. Statement second is also correct. No, statement first is correct. Statement second is not correct because anatomy is not used for the phylogenetic study. So the statement first is correct. Statement second is not correct, and statement second is not the correct reason, correct explanation of the statement first. Are you getting? Statement second is not the correct explanation of statement first. ये हुआ आपका आंसर. ठीक है. तो मैंने बताया कि assertion is true, the reason is wrong, right? And the reason is not the correct explanation of the assertion. ठीक है. अब देखो next is next question is the science of classifying organism is called taxonomy. Assertion. Next question है the science of classifying organisms is called taxonomy. Is it true? Is it true? The science of classifying the organisms is called taxonomy. Yes, it is true. Science of classifying the organism is called taxonomy. ये true है. Next is reason दिया है systematics and taxonomy have the same meaning. Systematics और taxonomy का meaning same है क्या? No, because systematics is also considering, है ना, कौन सा evolutionary relationship भी consider करता है systematics. So assertion is true, but the reason is not true, right? So assertion is true, but the reason is not true. So reason is not the correct explanation of the assertion. ठीक है. आया समझ में आपको ये. और एक हमने स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखा और देखेंगे.
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, assertion क्या दिया, देखो लिविंग बींग्स एक्सचेंज देयर एनर्जी विद देयर सराउंडिंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो उनके सराउंडिंग के साथ में कुछ एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, ये दिया है assertion। रीजन क्या दिया है, लिविंग बींग्स आर द एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। बताओ मुझे, लिविंग बींग ओपन सिस्टम है क्या? हम कंटिन्यूअसली, देखो ओपन सिस्टम का क्या मतलब होता है, ओपन सिस्टम का मतलब होता है कि जो हम क्लोज सिस्टम नहीं है, वी आर ओपन सिस्टम। बिकॉज कैसा, कैसे मैं बताता हूँ उसको, सबसे पहले बात, लिविंग ऑर्गेनिज्म हम जो है हमारे सराउंडिंग के साथ में एक्सचेंज करते हैं एनर्जी, एनर्जी तो हम एक्सचेंज करते हैं, लेकिन हम ओपन सिस्टम कंप्लीटली नहीं है, राइट। तो यहाँ यही पर भी सेम आंसर होगा कि assertion इज ट्रू, रीजन इज रॉन्ग, एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। तो यही पे वही आंसर होगा, ठीक है, सेम है, सेम है। ओपन सिस्टम का मतलब ऐसा है कि जो सिस्टम कंटिन्यूअसली बाहर से एनर्जी लेती है और बाहर को एनर्जी छोड़ती भी, ऐसी वाले सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम, ठीक है। ऐसा ऐसा सिस्टम जिसमें रिएक्शन ओपनली हो रहा है, बाहर उस रिएक्शन में से हीट जो है वो बाहर जाएगी, बाहर की हीट अंदर आएगी, ऐसा वाला सिस्टम। नेक्स्ट इज, जो नेक्स्ट इज द बॉटनी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। assertion देखो, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज ओपन, रेस्पिरेशन, हाँ ओपन कंसिडर कर सकते हैं रेस्पिरेशन हम। देखो अभी एक मिनट आगे वाला क्वेश्चन देखो, बॉटनी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड जूलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ये सही है। assertion क्या दिया है देखो, बॉटनी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, जूलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। यस इट इज ट्रू, ट्रू है ना। तो नेक्स्ट इज बायोलॉजी इज द स्टडी, assertion अभी हमने देख लिया, रीजन देखो, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, biology is the study of living beings. Yes, it is true. So both are true, both are true. Biology is the study of living organism, na? So both are true, both are true, and the first is the explanation of the second, right, or the second is the explanation of the first, both are true. Next is, which next question is again related to the statement, assertion and reason से related है। Consciousness is considered as the defining property of the living organism। assertion दिया है, consciousness is considered as the defining property of the living organism। सही है? Yes, it is true, ठीक है, true। Next is, all organisms from prokaryotes to most complex eukaryotes can sense and respond to the environmental stimuli। ऑप्शन देखो, रीजन क्या दिया है, रीजन दिया है all organisms from prokaryotes to most complex eukaryotes can sense and respond to the environmental stimuli। ट्रू, ये भी ट्रू है, तो दोनों ट्रू है। तो यहाँ इस केस में क्या है, सो assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of the assertion। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। ठीक है, आया समझ में आपको आंसर, ऐसे assertion वाले क्वेश्चंस, और आगे भी हम देखेंगे बायोलॉजी क्लासिफिकेशन जो लेसन है उसमें भी हम assertion वाले क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन देखो, which one of the following is not a correct statement। सर हाँ बोलो। सर लेकिन हम आप जो टेस्ट देते हो ना उसमें हाँ असर्शन एंड रीजन की जगह पे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 लिखा रहता है, हाँ, तो उसका तो मतलब वही स्टेटमेंट कंफ्यूज होता है सर। असर्शन और रीजन मतलब वो समझ में आ जाता है, आपने अभी जो क्वेश्चंस लिए वो क्लियरली समझा, लेकिन जो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 का वो अलग लगता है। क्यों अलग लगता है, देखो अभी अभी जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऊपर ऊपर क्या लिखा होता है उस क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को हम कौन से टाइप वाला क्वेश्चन बोलते हैं, दिया, इन क्वेश्चन को हम बोलते हैं assertion और रीजन वाले क्वेश्चन, स्पॉटलाइट किया है इसको। तो देखो इन क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, assertion और रीजन वाले क्वेश्चन बोलते हैं कि नहीं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट को आप कंसीडर करोगे assertion और स्टेटमेंट सेकंड को आप कंसीडर करोगे रीजन, ठीक है। ओके, इसमें कुछ कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसे इसे नाम ही क्या, इसे बोलते ही क्या, इसे बोलते हैं assertion और रीजन वाले। तो assertion पहला स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है ना, वैसा दिया है, ओके। उसका मतलब assertion और रीजन ही होता है। चलो नेक्स्ट इज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढना है इसमें। तो देखो पहला वाला स्टेटमेंट है इनकरेक्ट, आपको ढूंढना है। सबसे पहले देखो पहला वाला स्टेटमेंट दिया है,
Botanical gardens have collection of living plants for reference. Correct or incorrect? Botanical gardens have collection of living plants for reference. चलो correct. ठीक है correct. Next what? The aquarium houses dried, pressed and preserved plant specimens. Herbarium houses dried, pressed and preserved plant specimens. Correct? Yes, ये भी correct. Next is next statement. Yes, next statement. Key is taxonomic aid for identification of specimen. Key is taxonomic aid for identification of specimens. Yes, yes, right. It is true. हमने देखा था ना taxonomic key के बारे में. Okay. Last statement is a museum has collection of photographs of plant and animals. ये क्या होगा? False होगा. म्यूजियम में कभी भी फोटोग्राफ नहीं होते, राइट? सो इट इज अ रॉन्ग, राइट? ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेबल ऑफ हर्बेरियम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेबल ऑफ हर्बेरियम शीट does not carry the information on. The label of herbarium does not carry the information on. हर्बेरियम पर कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं होती? अरे मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, सुन लो. उसके ऑप्शन दिए. पहले स्टेटमेंट क्या है? द लेबल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन. इस पर इंफॉर्मेशन नहीं होती. तो देखो सबसे पहले डेट ऑफ कलेक्शन, ये इंफॉर्मेशन होती है या हर्बेरियम? डेट ऑफ कलेक्शन, वेदर इट इज प्रेजेंट ऑन द हर्बेरियम. यस यस यस, इट इज प्रेजेंट. नेम ऑफ कलेक्टर होता है क्या? नेम ऑफ कलेक्टर होता है क्या? यस, नेम ऑफ कलेक्टर इज आल्सो देयर, राइट? नेक्स्ट, लोकल नेम होता है क्या? उसमें वर्नाकुलर नेम होता है क्या? लोकल नेम और वर्नाकुलर नेम, यस इट इज आल्सो देयर, राइट? नेक्स्ट, हाइट ऑफ द प्लांट की इंफॉर्मेशन होती है क्या? हाइट ऑफ द प्लांट. सो आंसर, योर आंसर शुड बी हाइट ऑफ द प्लांट. जो इंफॉर्मेशन नहीं होती वो कौन सा है? हाइट ऑफ द प्लांट. ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है नोमेनक्लेचर. क्वेश्चन पहले सुन लो क्या है. नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टन यूनिवर्सल रूल्स. नोमेनक्लेचर के उन्होंने बताया कुछ यूनिवर्सल रूल्स है. Which one of the following is contrary to the rules of nomenclature? नीचे दिए हुए जो ऑप्शंस है उसमें से कौन सा नोमेनक्लेचर के अपोजिट है? Contrary to the nomenclature rules. देखो, first option is the names are written in Latin and italicized. ये contrary है क्या? क्या this is a rule है क्या? ये rule, the names are written in Latin and are italicized. Yes, it is true. है ना? ये है. It is not contrary. Okay. When written by hand, the names are to be underlined. Names are to be underlined when written by hand. True? Yes, Avishkar, it is true. ठीक है. The first word in the biological name represents genus and the second word species. सही है? सही है? Yes, it is true. Next question, next option given. Biological name can be written in any language. It is false. तो ऐसे आपको सिलेक्ट करने हैं ऑप्शंस. अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार ऑप्शन दिए हैं. चार ऑप्शंस दिए हैं. उन चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन करेक्ट है. सुन लो मेरी बात. चार ऑप्शंस दिए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. उन चार में से कोई भी दो ऑप्शन करेक्ट है. तो दो कौन से करेक्ट है वो मुझे बताने आपको. फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वाज गिवन बाय द अर्स्ट मेयर. डू यू नो डेफिनेशन ऑफ द बायोलॉजी? पहले सुन लो सब ऑप्शंस, फिर हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे. डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वाज गिवन बाय द अर्स्ट मेयर. एक्चुअली ये जो है ना अर्स्ट मेयर, मैंने बताया था, इसने मॉडर्न स्पीशीज का डेफिनेशन दिया था. किसने दिया था? मॉडर्न स्पीशीज. मॉडर्न स्पीशीज का लेगा जो, यानी इसका आंसर नो है. ठीक है, तो ए इज नॉट करेक्ट.
फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। अभी इसका मीनिंग समझ, फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट, इसका मीनिंग समझ। उन्होंने बोला कि फोटो पीरियड अफेक्ट नहीं करता रिप्रोडक्शन प्लांट, तो व्हाट इज अ फोटो पीरियड, ये समझ। फोटो पीरियड का मतलब क्या होता है, ये आपको सिलेबस में बाद में, अभी नहीं, 12th में, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ फोटो पीरियड क्या होता है। प्लांट में अगर फ्लावरिंग होनी है, if plants have to produce a flower, flower is a site of sexual reproduction in plants, प्लांट में अगर फ्लावरिंग होनी है तो प्लांट को एक सनलाइट चाहिए। क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। तो क्रिटिकल, कुछ प्लांट को 8 आवर्स की सनलाइट चाहिए, या फिर लाइट पीरियड चाहिए। आपको समझ में आ रहा है? तो कुछ प्लांट होते हैं उन्हें 8 आवर्स दिन में सनलाइट चाहिए या फिर लाइट चाहिए, तभी उनमें उनमें फ्लावरिंग होती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जिनमें 8 आवर्स उनको एटलीस्ट डार्क नाइट चाहिए, डार्क नाइट यानी सनलाइट लाइट बिल्कुल नहीं चाहिए, ऐसे भी प्लांट होते हैं। तो जिन जिन प्लांट को लॉन्ग लाइट चाहिए उन्हें बोलते हैं हम लॉन्ग डे प्लांट्स। क्या बोलते हैं? लॉन्ग डे प्लांट्स। यानी क्या, अगर प्लांट में फ्लावरिंग होना है तो कुछ प्लांट को लाइट की आवश्यकता है और कुछ प्लांट को डार्क की आवश्यकता है ना। तो जिनको ज्यादा डार्क में, जिनको डार्क की आवश्यकता है, उन्हें जितना डार्कनेस ज्यादा मिलेगा, जितनी लाइट कम मिलेगी, उतना उनमें फ्लावरिंग ज्यादा होगा। और जो दूसरे प्लांट है जिनको लाइट की आवश्यकता है, जिनको उतनी लाइट ज्यादा मिलेगी जितने वो ज्यादा फ्लावरिंग करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया? तो इसे बोलते हैं फोटो पीरियड। फोटो पीरियड मीन्स जितनी लाइट मिली उसके हिसाब से फ्लावरिंग होता है। सो इसके हिसाब से प्लांट जो है उनका डिवीजन हुआ है लॉन्ग डे प्लांट एंड लॉन्ग नाइट प्लांट। ऐसे लॉन्ग डे का मतलब क्या है, जिनको ज्यादा लाइट चाहिए तब उनमें उनमें फ्लावरिंग होगा, ऐसे जो प्लांट होते हैं उन्हें बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। दूसरे टाइप के प्लांट्स होते हैं जिनको कम जिनको कम लाइट चाहिए, यानी जिनको ज्यादा डार्कनेस चाहिए, ऐसे वाले जो प्लांट हैं उन्हें हम बोलते हैं लॉन्ग नाइट प्लांट। आपको समझ में आया व्हाट इज अ फोटो पीरियड? तो देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, बोला स्टेटमेंट क्या है, अब मुझे आप बताओ। अभी मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन किया है, तो क्वेश्चन क्या दिया है? फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। उन्होंने बोला कि फोटो पीरियड अफेक्ट नहीं करता रिप्रोडक्शन, लेकिन मैंने आपको बताया कि फोटो पीरियड इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्लावरिंग इन प्लांट्स, और फ्लावर्स आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मुझे it is false, yes, all of you have got it right। तो मैंने क्या बताया आपको, फोटो पीरियड इज अफेक्टिंग द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, बिकॉज अगर लाइट ज्यादा मिली, लाइट अगर ज्यादा मिली, तो लाइट अगर ज्यादा मिलेगी तो फिर फोटो पीरियड जो है, नंबर ऑफ फ्लावर्स है, वो फ्लावर्स कम है ना। सो अकॉर्डिंग टू द फोटो पीरियड the flowering can get affected, right? So here they have given photo period does not affect the reproduction in plant, it is a false statement, a false statement। Next statement is binomial nomenclature was given by the Linus। binomial nomenclature was given by Linus, ये सबको पता है आपको। So option C is correct। Next question is, next statement is last वाला statement है, in unicellular organisms, सुन लो स्टेटमेंट क्या है, in unicellular organisms reproduction is equal to the growth, reproduction is synonymous to the growth। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का मीनिंग ही ग्रोथ है। इसका क्या है? ट्रू है ये स्टेटमेंट। क्यों ट्रू है? क्योंकि बैक्टीरिया में मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया में सेल डिवीजन इज द ग्रोथ, सेल डिवीजन इज द रिप्रोडक्शन। सेल डिवीजन यही बैक्टीरिया में ग्रोथ है, सेल डिवीजन ही बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन, राइट। सो बोथ दिस स्टेटमेंट मींस द स्टेटमेंट नंबर सी एंड डी आर करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, लेकिन मैं सिलेक्टिव कुछ क्वेश्चन से उन्हें डिस्कस कर रहा हूँ। चलो चलो असर्शन और रीजन वाले कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं।
क्वेश्चन देखो, आर्की बैक्टीरिया, एसर्शन देखो क्या, यानी स्टेटमेंट नंबर 1 दिया, क्या है स्टेटमेंट नंबर 1, आर्की बैक्टीरिया आर कॉल्ड एंशिएंट बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया आर कॉल्ड एंशिएंट बैक्टीरिया, इसमें मैंने बोला है ट्रू है, चलो ठीक, सही है, ये सबको पता है। नेक्स्ट इज रीजन आर्की बैक्टीरिया आर प्रेजेंटली लिविंग, वो आज भी जिंदा है करके हम उसे एंशिएंट बैक्टीरिया बोलते हैं, ऐसा नहीं, वो पुराने बैक्टीरिया है, पुराने बैक्टीरिया है नहीं, बहुत पुराने हैं करके हम उसे एंशिएंट बोलते हैं, एंशिएंट का मतलब आज भी जिंदा है ऐसा नहीं। सो assertion is true, reason is wrong, right? आया समझ में आपको? And the second is not the correct explanation of the first, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे assertion क्या है, देखो नेक्स्ट, ऑल प्रोटिस्टा कंटेन न्यूक्लियस, सब प्रोटिस्टा के पास न्यूक्लियस होता है, बोलो, ऑल प्रोटिस्टा हैव न्यूक्लियस, अरे बोलो, सुनाई नहीं दे रहा, ऑल प्रोटिस्टा हैव न्यूक्लियस, yes it is correct, Diya, yes it is correct, all protista they have the nucleus, it is true, yes Zakia it is true, Apurva, next किंगडम प्रोटिस्टा, अभी असर्शन हो चुका, अभी देखेंगे हम रीजन क्या दिया, और किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड, देखो अच्छे से, किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स एंड कॉलोनियल यूकैरियोट्स, ये छोड़ दो, पहले स्टेटमेंट सुनो क्या है, kingdom protista include unicellular prokaryotes is false, right? So assertion is true, reason is false, as well, and the reason is not the correct explanation of the assertion, as well में ठीक, okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको कितना समझ में आया उससे मुझे अंदाजा लग जाएगा। assertion क्या दिया, सबने आंसर देना है, हाइफी आर प्रेजेंट इन फंगाई ओनली, हाइफी फंगाई में प्रेजेंट होते हैं, ओनली फंगाई में हाइफी प्रेजेंट होते हैं, यस, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये हाइफी दिखाई दे रहे हैं, ये हाइफी है फंगस की, है ना, ठीक है, ठीक है, ट्रू ट्रू ट्रू, चलो नेक्स्ट, हाइफी, नेक्स्ट रीजन क्या दिया, हाइफी आर यूनिसेलुलर, हाइफी आर, अच्छे से सोच समझ के आंसर देना, हाइफी आर यूनिसेलुलर, यस इट इज फॉल्स, वेरी गुड, वेरी गुड, इसका मतलब है आपको अच्छे से सब समझ में आ रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। देखो क्या है इसका मतलब, assertion क्या बोला उन्होंने कि हाइफी कैसे होते हैं, हाइफी आर प्रेजेंट इन फंगाई, इट इज ट्रू, बट हाइफी आर यूनिसेलुलर, ये फॉल्स है, ये बहुत अच्छा आंसर आपने दिया, क्योंकि क्या देखो ये क्या है, ये एक सिंगल सेल है, ये दूसरी सेल है, हाइफी कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर, वेरी गुड, सो ये फॉल्स, ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट, अभी कल भी मैंने आपको एक बताया था कि फंगाई की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू दैट, फंगाई की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, काइटिन से बनी हुई, ठीक है, चलो वेरी गुड, चलो नेक्स्ट असर्शन, असर्शन सुनो क्या है, फंगाई कंटेन सेल वॉल, फंगाई के पास सेल वॉल है, असर्शन इज फंगाई कंटेन सेल वॉल, ट्रू, सबने दिया आंसर, ट्रू, ओके, नेक्स्ट रीजन क्या है, देखो द सेल वॉल, एक रीजन क्या है, वो आपका सेल वॉल ऑफ द फंगाई इज नॉन सेल्यूलोजिक, फंगाई की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी हुई नहीं, यस वेरी गुड, इट इज ट्रू, it is non-cellulose, it is not made up of cellulose, it is made up of chitin, very good, both assertion and reason both are true, दोनों भी क्या है, true, चलो next is स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगा मैं कौन सा,
सो हम करेंगे बाद में स्क्रीन शेयर, जब वो टॉपिक आ जाएगा हम करेंगे। नेक्स्ट assertion is, assertion देखो क्या है, the parasitic fungi, सुन लो पहली बार, the parasitic fungi cause a number of diseases in plants. Parasitic fungi can cause the diseases in the plants. सही है? True or false? Parasitic fungi can cause the diseases in the plants. True? Yes, it is true. Yes, 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 very good. Now next, अब ये समझ में आ रहा है क्या? रीजन क्या दिया है देखो, पैरासिटिक मीन्स हमने देखा ना अल्बुगो, अल्बुगो क्या करता है, इन्फेक्शन करता है, कौन से प्लांट को इन्फेक्शन करता है, मस्टर्ड के प्लांट को इन्फेक्शन करता है। पैरासिटिक मीन्स पैरासाइटिक, इन्फेक्शन करने वाला। नेक्स्ट इज फंगाई इज इन्वॉल्व इन न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, इसका मीनिंग बोलो। आपको ये समझ में आ रहा है कि न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में फंगाई इन्वॉल्व है। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग का मतलब क्या है? फंगाई जो है, फंगाई इज इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, इसका मीनिंग समझ में आया? इसका मीनिंग ये है कि फंगाई जो है वो डीकम्पोजर है, डीकम्पोजर है, सैप्रोफाइटिक है, राइट। तो वो डीकम्पोज करते हैं, जब भी वो किसी मटेरियल को तोड़ देंगे तो उसमें से क्या जो न्यूट्रिएंट वो बाहर निकलेंगे, है ना। सो इट इज आल्सो, ठीक है। ये देखो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। व्हाट इज न्यूट्रिएंट साइकिलिंग? सो assertion and reason both are true in this case. इस केस में assertion और reason दोनों सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट इज देखो, cyanobacteria are photosynthetic blue green algae with all the prokaryotic structures. Cyanobacteria are photosynthetic blue green algae with all the prokaryotic structures. क्या है ये? This is true. Yes, it is true. It is true. It is true. ठीक है। नेक्स्ट इज assertion, समझ में आया आपको? ये it is true. They are green due to the presence of the chloroplast. साइनोबैक्टीरिया ग्रीन होते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। अब ये बताओ साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोप्लास्ट कैसे होगा? साइनोबैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, याद करो बैक्टीरिया है। सब एक बार क्वेश्चन को रिवाइज करो। मैंने क्या बोला था? साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं। क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको यूग्लिना में बताया, क्योंकि यूग्लिना कैसा है? यूकैरियोट। यूग्लिना के पास क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया इज अ ब्लू ग्रीन algae. It is a bacteria. बैक्टीरिया के पास क्लोरोप्लास्ट होता है। Yes, nostoc is a cyanobacteria. Yes, फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक है, लेकिन फोटोसिंथेटिक जो होते हैं क्लोरोफिल होता है उनके पास, लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा क्योंकि वो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के पास सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, पिगमेंट होते हैं बैक्टीरिया के पास, लेकिन सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते। तो they are green due to the presence of chloroplast. This is because they have the chlorophyll in there, right? chlorophyll pigment है और दूसरे भी पिगमेंट उनके पास है। तो assertion is true, reason is false. ठीक है। आपको प्लाज्मिड याद है? प्लाज्मिड याद है आपको? तो उस पर एक क्वेश्चन वो देखेंगे। क्वेश्चन सुन लो क्या है, मैं बताता हूँ। प्लाज्मिड्स आर सिंगल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड्स आर सिंगल स्ट्रैंडेड, देखो क्या पूछा है उन्होंने, प्लाज्मिड्स आर सिंगल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अच्छे से आंसर करो। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल तो है प्लाज्मिड, ये मुझे पता है, आपको भी पता है, लेकिन वो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं क्या? अपूर्वा, आर दे सिंगल स्ट्रैंडेड? डोंट फॉरगेट दिस।
सपोज दिस इज अ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया आएगा, बैक्टीरिया है ये, दिखाई दे रहा है ये बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के पास उसका खुद का क्रोमोसोम है, खुद का क्रोमोसोम भी उसका कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। बैक्टीरिया का क्रोमोसोम कितने बार निकाला है, 2-3 बार निकाला है, आपको दिखाया फिगर। तो इसका क्रोमोसोम कैसे होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है बैक्टीरिया का क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम के साथ में बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा वाला क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, तो जो एक्स्ट्रा वाला क्रोमोसोम है इसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। लेकिन प्लाज्मिड इज नॉट अ सिंगल स्टैंडर्ड, इट इज अ डबल स्टैंडर्ड। जैसा ये डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम है वैसा प्लाज्मिड भी क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। तो इसमें क्या कुछ बोला है उन्होंने, प्लाज्मिड इज अ सिंगल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। तो बोलो आप क्या बोलोगे इसका आंसर, ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स, राइट, इट इज फॉल्स। ठीक, अभी नेक्स्ट रीजन दिया है, प्लाज्मिड्स आर possessed by eukaryotic cell. Plasmids are present in eukaryotic cell, ऐसे बोल रहे हो, क्या है, किसमें प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में बहुत कम होते हैं प्लाज्मिड, है ना, नहीं होते, ऐसे पकड़ लो। सो दिस इज फॉल्स, राइट। सो both the statement number 1 and statement number 2 both are false, दोनों स्टेटमेंट गलत है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन assertion, yeast is used in the baking industry, yeast is used in the baking industry, true, true। नेक्स्ट रीजन दिया है उन्होंने, क्यों यूज करते हैं उसका रीजन दिया है, yeast is used in baking industry, why, रीजन दिया है, carbon dioxide produced during the fermentation causes bread dough to rise by the thermal expansion। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और उससे वो ब्रेड जो उसकी साइज बढ़ती है, ये भी क्या है, ट्रू। सो बोथ द statement number assertion and reason, statement number 1 and statement number 2 are true and second is the correct explanation of the first। ठीक है, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट assertion, चलो नेक्स्ट assertion वाला क्वेश्चन देखो, यूग्लिना is studied as animal as well as plant। सुन लो, so please pay attention, okay, no doubt। चलो, यूग्लिना is used as plant as well as animal, क्या है, true है। स्टडीड, यूग्लिना का स्टडी किया जाता है प्लांट के जैसा और एनिमल के जैसा, वो ट्रू ट्रू ट्रू। अभी रीजन बताया उन्होंने, इसका रीजन उन्होंने बताया कि यूग्लिना ज्यादा एनिमल है और कम प्लांट है, ऐसा बोल, यूग्लिना इज मोर एन एनिमल देन अ प्लांट, यूग्लिना इज मोर एन एनिमल देन अ प्लांट, ऐसा बोल सकते हैं क्या, नहीं, यूग्लिना प्रोकैरियोटिक नहीं, यूकैरियोटिक होता है यूग्लिना, क्योंकि वो प्रोटिस्टा में, और जितना वो प्लांट जैसा कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं उतना वो एनिमल जैसा भी दिखाते हैं, तो वो एनिमल ज्यादा नहीं है और प्लांट भी ज्यादा, तो दे आर बोथ द सेम, राइट, प्लांट और एनिमल दोनों में जैसा कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं। सो रीजन इज फॉल्स, assertion इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, a septate mycelium is called coinocytic, statement number 1, a septate mycelium is called coinocytic, बोलो जल्दी जल्दी फास्ट, a septate mycelium is called coinocytic, yes it is true, coinocytic mycelium को क्या बोलते हैं हम, a septate, very good। next रीजन दिया है उन्होंने, basidiomycetes show such type of mycelium, इन्होंने बोला कोइनोसाइटिक माइसेलियम इज शोन बाय द बेसिडियोमाइसिट्स, नो इट इज फॉल्स, बिकॉज
कोइनोसाइटिक माइसेलियम इज प्रेजेंट ओनली टुवर्ड्स द फाइकोमाइसेट्स, ओनली फाइकोमाइसेट्स के पास है, बाकी सबके पास कैसे है माइसेलियम, सबके पास माइसेलियम होता है सेप्टेट, राइट, सबके पास माइसेलियम होता है सेप्टेट, ठीक है। सो बाकी के क्वेश्चंस हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। सो ऑल असर्शंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर। चलो।